Namaste and a very warm welcome to everyone joining us today for this special session of the Yoga Awareness Expert Lecture Series. As many of you are aware, CCR Binds, Center for Research in Yoga and Naturopathy under the Ministry of Ayush, Government of India, stands at the forefront of promoting and scientific validating yoga and naturopathy across the nation. In this mission forward, CRI Central Research Institute of Yoga and Naturopathy, David Thana Jhajjar, is rapidly emerging as a premier center for excellence. Our core research not only to preserve our ancient heritage, but to bridge the gap between traditionalism and modern science, bringing the power of holistic healing to every doorstep. On behalf of CCRYN, it is my absolute honor and privilege to welcome our special guest who has long and rich 44 years of experience in the yoga and wellness industries. He brings a wealth of expertise as a yoga section. Please welcome Sri Ravi Dikshit ji, sir. He is director Yogic Gurukul LLP and Shiv Holistic Yoga. He serves as the yoga therapist to the Honorable of Maharashtra. He is strategic advisor to Madhav Ayurveda Heart Care Clinics and advisory board member at B. by Patil's College of Ayurveda. He also served as a former joint director of the prestigious Kaveri Dhama Yoga Institute in Mumbai for 43 years. Sir is a qualified yoga educator, naturopath, who strongly believes in the power of yoga, naturopathy, and Ayurveda. His philosophy is beautifully simple. Yoga can be done anywhere, anytime, with no excuses. He was a true pioneer in the early 20s, introduced the concept of yoga on chair through his video series Samay Ka Sadupyog. This was played in local trains, local convents to help the general public. Because of his expertise, he was chosen by the Ministry of Ayush to help draft the official yoga workplace protocol in 2019. He is also a celebrated author of 4 full books on yoga, including Yoga Seniors and Yoga as Therapy. Over his career, he has taught over 10 lakh people across the globe, including countries like the USA, UK, Canada, and Singapore. One of the highlights of his journey includes leading massive landmark sessions of over 5,000 people for the International Day of Yoga, both in Jakarta, Indonesia, the Indian Coast Guard. His beautiful motto in life is to smile, have yogic joy at all times, no matter what. We are blessed to have him with us today to share his deep wisdom. So, dear audience, please join me in welcoming Sri Ravi Dikshit ji. The virtual stage is all over, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है. All right, once again, namaskar. We will begin with the our session in a minute. Some confusion was there, some kind of technical glitch was there. So let's begin with the session, and I will share my PPT. But before that, the topic says Sanskar. Okay, so let's begin our session with Sanskar, which is Namaste Mudra. And Sanskar हमारे कहते हैं कि प्रार्थना, प्रेयर जो भी आप करेंगे, सीखिए वो करना चाहिए. So let's begin with Sanskar. सभी लोग को म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा. सो मैं नमस्कार मुद्रा में बैठा हूं और आप भी आंखें बंद करिए. 1 मिनट के लिए अपनी जो भी जिसको मानते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, वो प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए और अपने आप को आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सिर्फ शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और अपना ध्यान सिर्फ आपकी प्रेयर में, प्रार्थना में लगाइए. हाथ जोड़ के रखिए, आंखें बंद रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए
और कुछ पलों के लिए शांत रहिए। और ये हम शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं प्रार्थना से, प्रेयर से, अच्छी भावना से और हाथ जोड़ के नमस्कार करके, सभी जो भी इसमें शामिल होते हैं उनको धन्यवाद देते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, शुभ काम के लिए हम ये अपने संस्कार करते हैं। आप सभी भी करिए। और अब मैं धीरे से हाथ नीचे रखता हूँ और आंखें खोलता हूँ और शुरुआत करता हूँ। लेकिन शुरुआत देखिए, कोई भी डिफिकल्टी लाइफ में आती है, जैसे आज थोड़ी सी आई टेक्निकल, हंसना मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। जैसे हमारे टीम है, मुस्कुराती है, हंसती है, वैसे आप भी मुस्कुराइए, हंसिए। और लेट मी बिगिन विद द प्रोग्राम एंड टुडेस टॉपिक. So the next slide I will just show you, and let's see whether we can go to the next slide. And okay, now this slide says it all. ये स्लाइड जो है हमारे भगवान विष्णु ने, जब उनके भक्तों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, हम आपके लिए क्या करें और क्या दें, भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी कुछ आप देते हो मोस्टली वो पेरिशेबल होता है, नष्ट हो जाता है, खराब होता है या मिट जाता है। तो आप कुछ ऐसा दीजिए, भगवान विष्णु ने कहा, कि जो मिटे नहीं और जो तुम्हारे साथ भी रहे। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन तुम्हारे साथ भी रहे, ऐसा कुछ मुझे दीजिए। तो उन्होंने 8 फूल मतलब 8 चीजें अपने भक्तों को कहा कि ये मुझे दीजिए। और वो 8 चीजें हैं अहिंसा। सबसे पहले आपको ये पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है। हमको सबको पता है तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, उन्हें कोशिश करके वश में रखिए, कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए। फिर उन्होंने कहा कि जो भी इंसान है, जो भी जीव है, सबसे प्यार करिए। किसी प्रकार की हेट, घृणा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए मन में। हम सब समान हैं, हम सब इक्वल हैं। जो भी जीव जंतु भी हैं उन्हें भी प्यार करिए। तो लव एवरीवन। फिर उन्होंने कहा कि फॉरगिवनेस, ये एक ऐसा चीज है, कई बार होता है हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, किसी ने बुरा किया, मैं माफ नहीं कर सकता, ये मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन अंत में उस मोमेंट में आपको लगता है कि मैं माफ नहीं करूं, अन्याय हुआ है। लेकिन कुछ पलों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद आपको लगता है कि इस बात में पकड़ना रखना कुछ फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप माफ करिए, तभी आप रिलैक्स हो पाएंगे, इसमें आपका भला है। तो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना भी कुछ भी बुरा भला कुछ भी हो जाए, अंत में कुछ समय बाद जरूर आप उसे माफ करिए और आगे बढ़िए। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग इतना कमाते हैं, इतना सब संचय करते हैं, अपने पास रखते हैं, कुछ ना कुछ चीज या पैसा या जो प्रकार का भी आप दान कर सकते हो वो दान करो। दान सिर्फ धन से नहीं होता, ज्ञान से, बुद्धि से, मदद से, समय से, किसी प्रकार का भी दान करिए, जिससे आपके पास जो काफी है मतलब आपके पास जो है उसे आप बांटिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो समय हो, धन हो, जो भी हो। तो डोनेट करिए, ये बहुत जरूरी है, जिससे आपको अच्छा लगता है और दूसरे का फायदा होता है। फिर उन्होंने कहा ध्यान भी जरूरी है। ध्यान का मतलब यहाँ पे दोनों से है, ध्यान और प्रार्थना। तो ये उन्होंने कहा कि आप रोज ध्यान करो, रोज प्रार्थना करो। हमें पता है सबको प्रेयर क्या होती है, ध्यान क्या होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रोज योग भी करें, जो हम थोड़ा सीखेंगे और जानेंगे। तो योग सभी को पता है, योग क्या है, मैं डिटेल में अभी नहीं जाता हूँ, थोड़ी देर में बोलूंगा। और 8वां फूल उन्होंने मांगा कि ईमानदार रहिए, ऑनेस्टी रखिए, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारे संस्कार हैं जो हमारे भगवान विष्णु ने या फिर योग ने यम नियम के द्वारा, हर धर्म में, हर शास्त्र में ये संस्कार हमें मिलते हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए। और ये संस्कार आज साइंस ने उन्हें काफी कुछ जोड़ दिया है, साबित कर दिया है। तो संस्कारों का और साइंस का समन्वय अगर सही रूप से होता है, हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो मेरी यही सलाह है सभी को कि संस्कार और मिलाइए और आपका पूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शॉर्ट में बोल देता हूं कि जैसे हम बचपन से जो भी कुछ सीखते हैं, करते हैं, आज जो भी कुछ हम हैं, हमारे संस्कारों के कारण है।
हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गुरुओं ने बहुत से संस्कार दिए, बहुत सी चीज़ें दी। फिर हमने ज्ञान बढ़ा, नॉलेज बढ़ी, साइंस सीखी, साइंस की बातें हमने यूज़ की। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, नमस्ते का एग्जाम्पल दिया। नमस्ते से बहुत फायदा होते हैं, ह्यूमिलिटी आती है, एक मन शांत रहता है, माइंड अच्छा रहता है, हाथ के प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट होता है। हम लोग अब आजकल शायद कुछ लोग अभी भी खाते हैं, जमीन पे धरती पे बैठ के खाना बहुत फायदा होता है, ये हमारे संस्कार थे। आज साइंस भी कहती है कि आप कोशिश करके नीचे बैठिए। हाथों से खाना, ये भी कितना हमारे संस्कारों में कहा गया था कि उंगलियों से खाइए। आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, आपको बड़ा एक फायदा होता है उनको, उनसे खाने का जो बेनिफिट है वो जब आप खाओगे हाथ से तो लगता है उंगलियां चाटने का, तो वो बेनिफिट बहुत है। सो ये संस्कार थे। अब साइंस कहती है कि आप हाथ से खाइए। उसके अलावा हमारा जैसे था कि मेडिटेशन करो, प्रेयर करो। हम जब भी मंदिर में जाते हैं कहीं, या गुरुद्वारे, चर्च में, या आप कहीं भी जाते हैं, हमको कहा गया था संस्कार में कि आप कुछ पलों के लिए वहां बैठिए, शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट 5 मिनट वहां बैठिए। क्यों कहा गया था, क्यों संस्कार दिए गए थे? और यही संस्कार अब कहते हैं कि ये करने से आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो उस समय शायद ये शब्द नहीं था वेगस नर्व का, लेकिन अब साइंस ने इसे साबित कर दिया है। तो जब भी आप शांत बैठते हो, अच्छे वातावरण में, अच्छे एनर्जी के रूम में, एरिया में, मंदिर या चर्च या गुरुद्वारे में, आंखें बंद करके, तो आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, वेगल टोन बढ़ जाती है, आपका सिस्टम होता है, हील करता है, रिपेयर करता है, वो एक्टिव हो जाता है और आप शांत हो जाते हैं, आपको बहुत फायदे मिलते हैं। तो जब भी ये चीजें हमें बताई गई थी संस्कारों में, उनका साइंस ने साबित किया हुआ है। वैसे ही जैसे कहा गया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्यास्त के समय खा लीजिए, ये हमारे संस्कार थे, संस्कार हैं। लेकिन अब साइंस कहती है ये बातें कि आप सनराइज के बाद मत खाइए, आपका मेटाबॉलिक रेट बिगड़ जाएगा, आपका हजम खाना अच्छी तरह नहीं होगा। सो बाय सनसेट वी शुड ईट, ये हमारे संस्कार थे, अब हमें साइंस बता रही है। वैसे ही शुभ मुहूर्त का है, अगर आप सुबह उठते हैं 4-5 बजे, तो आपकी जो बॉडी के सिस्टम है डाइजेशन का, या आपकी जो एक्टिविटीज है, वो साइंटिफिकली अच्छी हो जाती है, और ये हमारे संस्कार भी थे। तो अगर ये चीजें हम मिला लें, जोड़ लें और इनका पालन करें, तो संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। जैसे दूसरा एक और उदाहरण है, संस्कार थे भाई, आप सुबह उठ के वॉक करिए, हो सके तो बिना चप्पल जूते के जमीन को स्पर्श करिए। जब हम उठते हैं सुबह सुबह, जमीन को स्पर्श करते हैं, तो ये क्यों कहा गया था? बिकॉज इट इज अ वंडरफुल अर्थिंग, कनेक्टिंग, इट गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग। सो ये ग्राउंडिंग फीलिंग, बैलेंस करता है, सेंसरी स्टिमुलेशन करता है, प्रकृति से जोड़ता है हमको। तो ये हमारे संस्कार थे। अब साइंस कहती है कि आप घास पे चलिए, नंगे पैर चलिए। वैसे ही चैंटिंग का है, प्रेयर का है, और हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, सब ने कहा है सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो, योग करो। अब ये साइंस कहती है कि आप ये करेंगे आप फिट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी हमारे संस्कारों में हैं, जो आज साइंस ने साबित किया है कि आपको ये करना चाहिए। और मैं कुछ बातें और बताऊंगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे बड़ा है जो आयुर्वेद भी कहता है, संस्कार भी कहते हैं, हमारे नाना नानी, दादा दादी सब ने कहा, दिनचर्या का पालन करिए। ठीक है, दिनचर्या का पालन, जैसे सुबह उठे, सूर्य को जल दिया। सूर्य को जल क्यों दिया? उसका रीजन यही था कि हमें विटामिन डी मिले, कुछ अच्छी उसकी जो किरणें हैं वो मिले, उनका फायदा हो, ये साइंस कहती है। तो ऐसी चीजें बहुत सी हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं और जो हमारा संस्कार और साइंस को मिलाती हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि खाना, फूड इज योर मेडिसिन, आहार हमारी एक औषधि बनती है और बन जाती है। ये कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा, मैं थोड़ा धीरे से इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। प्राण शक्ति हमारी जो है वो सांस जो हमारी है, जब तक वो चलती है हम हैं, जब वो नहीं चलती हम नहीं होते हैं। तो प्राण शक्ति से जो हमारे संस्कार में कहा गया है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो प्राणायाम करिए, सांस पे ध्यान लगाइए। इसके भी उदाहरण बहुत से हैं। आपकी लंबी आयु लंबी हो सकती है, आपके ऑर्गन अच्छे रह सकते हैं, आपकी जो बीमारियां हैं वो कम हो सकती हैं। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और योग का बेसिक मीनिंग है कि संतुलन में रहना, स्थिर रहना, संतुलन में रहना। और
जैसे योग में कहा गया योगा कर्मसु कौशलम, आप जो भी कुछ काम करते हैं कुशलता से करिए, संतुलन में करिए, अच्छे से करिए। वही हमारा एक संस्कार भी थे, साइंस भी वही कहती है। और तो मैं नेक्स्ट स्लाइड भी देख लेता हूँ। अब जो साइंटिफिक बातें हैं उनका जो लैब में टेस्ट हुआ है वो एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। साइंटिफिक चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सी लैब हैं, विदेश में तो होता ही है काम ये, DRDO है, DIPS है, एम्स है, एमन्स है, इन सब ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि आप अगर योग करते हो रोज, जैसे अनुलोम विलोम करते हो, तो आपका सिस्टोलिक BP कम हो जाता है। वही डॉक्टर बोलता है आप दवाई लेते हो तो वो भी कम हो जाता है। तो फिर इससे अच्छा यही है कि हम प्राणायाम कर लें, ध्यान कर लें और BP कम कर लें। तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। वैसे ही हमारा शुगर का भी है, बिगिनिंग स्टेज में प्री डायबिटिक में तो पक्का वो कंट्रोल कर सकते हो आप, और अगर उसके ऊपर की स्टेज है तो भी कम हो सकती है अगर आप सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें और थोड़ा डाइट का परहेज भी करें। लेकिन ये सब चीज़ें आप करना डॉक्टर के सलाह से। मैं एक बता रहा हूँ जो साइंस ने बताया हुआ है और जो इसमें लिखा हुआ है। एस व्यासा ने बेंगलुरु में रिसर्च किया था, 12 हफ्ते अगर आप योग करते हो तो 30% से ज़्यादा आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, जो प्री डायबिटिक हैं और बॉर्डर लाइन पे जो थे स्टार्टिंग में। ऐसे ही बहुत सी रिसर्च है, आपके हार्ट ब्लॉकेज का भी है, एम्स ने रिसर्च की हुई है। अगर आप 1 साल तक रेगुलर योग करते हो तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी या कम ब्लॉक होंगी या प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऐसे ही ब्रेन के लिए भी किया गया है, निमन्स ने किया गया है। शवासन करिए तो आपके कॉर्टिजोल कम हो जाते हैं, गैबा बढ़ जाता है, HRV इंप्रूव होता है, MRI में ब्रेन आपका अच्छा काम करता है, उसकी जो ग्रोथ है अच्छी दिखती है। सेम विद मेटाबॉलिज्म एंड ओबेसिटी है। आप 12 सूर्य नमस्कार रोज करिए, आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपका जो सिस्टम है वो अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। सो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अब साबित हो चुकी हैं कि हमारे संस्कार में थी, हमारे पूरे जिंदगी में, हमारे जो भारत का संस्कृति है उसमें रही हैं। और इसका मूल मंत्र यही है कि संस्कार को जोड़िए, साइंस से जोड़िए और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रखिए। करना सिर्फ यह है कि रोज आपको कम से कम 30 मिनट मैट पे लेटना है, बैठना है, खड़े होकर कुछ करना है योगा। और योग में ज़्यादा खर्चा आजकल नहीं, हमारी सरकार कितनी जगह फ्री सिखाती है, हमारे कई योगा संस्थाएं जो फ्री सिखाते हैं। तो ये बहानेबाजी मत करिए, योग करिए, और सिर्फ आधा घंटा करो तो भी चलता है। ये भी रिसर्च में कहा गया है। 20 अभी जैसे आजकल जमाना आ गया है, समय कम बोलते हैं लोग, समय कम है, समय कम है, तो आप आधा घंटा करो, 20 मिनट करो। असली में रियल में तो आपको करना चाहिए लगभग 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा नहीं होता है तो आधा घंटा करिए। तो ये बहुत साइंटिफिक हो गया, संस्कार में आ गया, हमारे संस्कृति में आ गया, हमारे बुक्स में आ गया, सब में लिखा हुआ है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम कई बार इन बातों को विश्वास नहीं करते। उसके लिए एक ही चीज़ है, अनुभव करिए, अनुभव करिए, अभ्यास करिए। जब तक अनुभव नहीं करेंगे ये पूरे फायदे आपको नहीं मिलते हैं। चलिए मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी को याद होगा, ऑल इज वेल। आपको ये भी याद होगा हमारे संस्कार में क्या था, हमारे जब कुछ स्ट्रेस आया, परेशानी आई, तो ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादी दादा, सब ने क्या बोला, बेटा चिंता नहीं करो, डोंट वरी, हम देख लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो थी वो हमारे संस्कार में पहले से हैं, हम सिर्फ उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए पिक्चर आई थी और इसमें कहा गया था ऑल इज वेल। और जैसा हम सोचते हैं, हमारे संस्कार जैसे होते हैं, जैसा हम मन में विचार लाते हैं वैसा हो जाता है। तो अगर आप बार बार ये कहें कि ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, अच्छा है, अच्छा रहेगा, तो अच्छा ही होता है। तो ये आपके संस्कार लाइए, संस्कार में ऑलरेडी था, उसको याद रखिए। बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज से सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल। ना ऊपर आप पढ़ सकते हैं डिटॉक्स। हमारे सेहत के लिए डिटॉक्स इज सो इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द डिजीज, बीमारियां जो होती हैं वो बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स होती हैं। अगर हमारा बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो हमारे सब पार्ट हैं, ये क्लीन रहेंगे, डिटॉक्स रहेंगे, साफ रहेंगे, क्लीन हम उसको कर सकते हैं आराम से, तो बीमारियां नहीं आती हैं। हमारा शरीर बना है 100 साल या 120 साल तक जीने के लिए, ये मशीन ऐसी है। हम उसे केयर नहीं करते, ग्रांटेड लेते हैं, दुनिया भर की गलतियां करते हैं। तो आप याद रखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो संस्कार साइंस भी कहती है डिटॉक्स करिए।
अब डिटॉक्स करने के तरीके बहुत सिंपल हैं। मेंटल इमोशनल डिटॉक्स भी हमें करना चाहिए। उसके लिए जैसे पूजा पाठ है, प्रेयर है, फास्टिंग है, उपवास है, व्रत है, वो करिए। योग में लिखा हुआ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम हमारे हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये चीजें हमारे शास्त्रों में, संस्कारों में हैं। अब साइंस कहती है, साइंस कहती है कि आप फास्ट करिए। कई बार लोग बोलते हैं आप 14 घंटे तक मत खाइए। So there are so many research, so many information which says fasting is good, detox is very important. उसके लिए मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ, टिप्स देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे अभी पता ही होगा आप लोग को, अगर मैं पानी का गिलास पानी पीने के लिए उठाता हूँ तो ठीक है, उसी को मैं अगर पकड़े रहूँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो बुरा हाथ थक जाएगा, तनाव हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही हम कितनी चीजों को मन में रखे रहते हैं, मन में, दिमाग में भरे रहते हैं, उसको हम निकालते नहीं है, छोड़ते नहीं है। सो लेट गो करिए। किसी भी चीज को पकड़ कर रखोगे तो वो तनाव देगी। आपको लेट गो करना आना चाहिए, छोड़ देना, रिलैक्स करना। और देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स व्हिच वी ऑल नो। जैसे हमारे गीता सार में कहा है, हमारे संस्कारों में है, हमारे शास्त्रों में है, सिंपल लिखा हुआ है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और फल मिलता है मोस्टली अगर हमारा आशावादी नेचर है, हमने दिल से, दिमाग से, ढंग से मेहनत की है, तो फल अच्छा ही मिलता है। और अच्छा नहीं मिलता है उसका भी कोई रीजन होता है, विच वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। सो सिंपल सी पॉइंट्स हैं कि आप डिटॉक्स कर सकते हो माइंड को, इमोशंस को, एंड हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, दैट आई विल टेल यू इन शॉर्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सबसे बड़ा हमारा पर्पस है हम स्वस्थ रहें साइंटिफिकली, संस्कार से। तो ये हमारे शरीर में 5 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे तो बहुत से हैं। Skin is the largest organ of the body. If you sweat out once a day, twice a day, you will feel very fresh and light. तो याद रखिए कि स्किन को आपको अच्छा रखना है। स्किन के थ्रू डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स जनरली होता है 4 तरीके से, स्किन के थ्रू, दूसरा हमारा हर सांस हम छोड़ते हैं उसके थ्रू, एक्सलेशन के थ्रू, मोशन पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं। तो शरीर हमारा कॉन्स्टेंटली सफाई करता है, डिटॉक्स करता है। हमें ध्यान रखना है कि हम उसे अच्छी तरह से एनहेंस करें, उसको ध्यान दें। जैसे मैंने बताया स्किन के लिए, आपकी जो स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसको आप डिटॉक्स करिए, पसीना निकालिए दिन में 1-2 बार। लंग्स हमारे एक बड़ी बकेट है, इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लीटर सांस आप भर सकते हो। नॉर्मली हम लेते हैं सांस 500 ml, लेकिन कैपेसिटी हमारे लंग्स की है कि हम 5 गुना 10 गुना सांस ज़्यादा ले सकते हैं। उसके लिए प्राणायाम करिए, संस्कार में जाइए और साइंस को भी फॉलो करिए। प्राणायाम एक जो ब्रेथ का वर्कआउट है। तो लंग्स को ध्यान दीजिए, जो आपका बहुत अच्छा और बड़ा बेस है हेल्थ के लिए। फिर आता है आपका लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, जितना टफ है वो, थोड़ा भी बच जाएगा तो भी वो वापस पूरा बन जाता है, जीवित हो जाता है वो। और हम क्या करते हैं लिवर के लिए, कुछ कुछ कचरा डालते रहते हैं बॉडी में, बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते हैं। लिवर को क्या चाहिए, सिर्फ फाइबर चाहिए। फाइबर मतलब जो खाना थोड़ा सा रॉ हो, जो खाना थोड़ा सा फ्रेश हो, हल्का हो, तला हुआ, ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो। तो लिवर को आप सिंपल सा नेचुरल खाना दीजिए, फाइबर दीजिए। सबसे अच्छा उसमें होता है स्प्राउट्स हैं, अंकुरित दाने हैं, बाकी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब किडनी हमारी कितना काम करती है, इट्स अ बेस्ट फिल्टरिंग मशीन। उसके लिए भी हम उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा डालते रहते हैं। किडनी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्वच्छ सादा पानी चाहिए। तो दिन में कम से कम लगभग 2 लीटर के आसपास पानी पीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ का तो डॉक्टर से बात कर लीजिए। फिर हमारी लॉन्गेस्ट जो बॉडी में है, इंटेस्टाइन है, कुछ लगभग 22-20 फीट लंबी होती है। तो इनको भी अगर आप साफ रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। इंटेस्टाइन में अगर कचरा जमा हुआ है, आपका कॉन्स्टिपेशन है, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका पेट साफ रहे। और वो कैसे रहेगा, सिंपल योग करिए जो आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, खाना हजम करता है, और खाने में फाइबर, या वी ऑल नो व्हाट इज गुड, वो अच्छा खाना खाइए। तो ये डिटॉक्स करना ज़रूरी है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जो हमारे संस्कारों में भी है, शास्त्रों में भी है, और अभी साइंस भी कहती है। और ये करने से क्या होता है, योग करने से क्या होता है,
happy hormones, daily dose of hormones, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins, these all GABA, these all hormones are released. साइंस ने प्रूव किया हुआ है. आप शवासन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो these happy hormones are released by the body and they are your ultimate nectar or your vitamin or your uh, गेट गोइंग के लिए एक जो हमको चाहिए रस, वो है ये हैप्पी हॉर्मोन्स का. आजकल देखा होगा कि कितने लोग को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये योग करिए, उससे काफ़ी कुछ ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाता है. और यहाँ मैं फोकस करना चाहूँगा डिटॉक्स के अलावा वेगस नर्व के ऊपर. ये लेट्स प्रैक्टिस दिस. आप सभी मेरे साथ 2 मिनट के लिए करिए, अनुभव करिए, ठीक है. अभी आपको मुस्कुराना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हैप्पी फेस, एंड फॉर 2 मिनट्स प्लीज क्लोज योर आइज. आंखें बंद करिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और बड़े प्यार से दोस्ती करते हुए सांस को लंबा गहरा लीजिए. जैसे मैंने कहा, हम 500 ml सांस लेते हैं, लेकिन कैपेसिटी हमारी है 5 गुना या और ज़्यादा सांस लेने की. तो आप प्यार से धीरे से सांस भरिए. ये बाल्टी अंदर आपके लंग्स, आपकी बाल्टियाँ हैं, भर लीजिए. पूरा सांस भरिए और बड़े धीरे से पूरा सांस बाहर निकालिए. जब तक आप पूरा सांस बाहर नहीं निकालेंगे, आपको सांस फ्रेश एयर लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जो यूज्ड एयर है, जो हमारे बॉडी ने यूज कर ली है, उसे अंदर रख के फायदा नहीं है, उसे पूरा बाहर निकालना जरूरी है. तो आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कुराहट है और बड़े प्यार से सीधे बैठ के आप सांस प्यार से भरिए. ताकत नहीं, थकना नहीं, झगड़ा नहीं, मारा मारी नहीं, और प्यार से धीरे से पूरी सांस बाहर निकालिए. ये अगर आप 2 मिनट और कर सकते हैं, और आप देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस होते हैं. आंखें बंद, हैप्पी फेस, एंड ब्रीद स्लो डीप एंड लॉन्ग. ये करने से आंखें बंदी रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, सांस को धीरे धीरे प्यार से लंबा गहरा लीजिए, लेकिन अनुभव करिए, उसको देखिए और पूरा ध्यान नाक के अंदर सांस पे लगा लीजिए. आपने सांस ली, तब ठंडी सांस नाक में जाती है, उसे अनुभव करिए. जब सांस छोड़ी तो गर्म सांस बाहर आती है, उसे अनुभव करिए. हमारे 2 नॉस्ट्रल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट. हमारे संस्कारों में ये बताया गया था, जब भी हम पूजा पाठ या कुछ विधि करते हैं तो हमको लोम विलोम कराया जाता था. वो क्यों था? वो नाड़ी शोधन था. अभी आप सिर्फ सांस लीजिए, सांस छोड़िए. लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, बिना ताकत लगाए. सो 2 नॉस्ट्रल्स हमारे हैं, राइट एंड लेफ्ट. अनुभव करिए कि किस नाक के छेद में सांस ज्यादा है, किस में कम है. सो ब्रीदिंग इज स्लो, डीप एंड लॉन्ग, eyes closed, happy face. If you do this for a few minutes every day, then the longest nerve in the body called vagus nerve will be stimulated, and in turn the system called parasympathetic system gets more active, and that is the system we want more active in our body for all the healing, repair, rejuvenation, relaxation and the good things in the body. अब आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आंखें बंद रखिए और 1 मिनट और कर लीजिए. कुछ नहीं, बस प्यार से सांस लेना है. फ्री है, पूरी सांस भरना है. बाल्टी है आपके अंदर, जो लंग्स है आपकी, बाल्टी भर लीजिए और उसे खाली भी करना है. और यही चीज सिर्फ अगर आप रोज करते हो, बैठ के या लेट के 5 मिनट सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर जैसे दवाई देता है वैसे मैं आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम 5 से 10 मिनट बैठ के या लेट के सिर्फ इतना करिए. और ये वेगस नर्व या वेगल टोन आजकल साइंस कहती है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था कि आप ये करिए. आंखें बंद रखिए, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस को लंबा गहरा लीजिए. ये चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दी थी. अब साइंस ने साबित कर दी है और हम जो है करते नहीं हैं. क्यों नहीं करते हैं? करिए. अब आँख खोल लीजिए. तो ये मैंने सिर्फ अनुभव कराया था कि वेगस नर्व जो बॉडी में है उसकी कितनी ज़रूरत है उसको एक्टिव रखना. और बहुत सिंपल है, साइंस में भी ये प्रूव हुआ है, कई रिसर्च मैंने आपको अभी दिखा दिया है इसमें.
तो मैं डिटेल में पढ़ूंगा नहीं। तो ये व्हाट हैपेंस बेसिकली, लॉन्गेस्ट नर्व कहाँ से, ब्रेन से लेके पेट तक है। तो ये पूरे, ये इसका जो रास्ता है वो पूरे रास्ते को जाती है, जहाँ पेट से लेके सर तक, वो सारी चीजें ठीक कर देती है। आपका जो आज का मेन मंत्र है वो याद रखिए, डिटॉक्स। दूसरा याद रखिए वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना। तो रिसर्च की बातें बहुत है जो मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, आप खाली देख लीजिए और सुन लीजिए। सो ये वेगस नर्व का जो फंडा है, या ये बेसिकली इसको बोल सकते हो आप, ये हमारा वाईफाई है, हमारा एक बैटरी चार्जर है। इट्स अ फैंटास्टिक वे टू इंश्योर दैट यू स्टिमुलेट योर वेगस नर्व। इसे आप चाहे तो बोलिए वेगस व्यायाम बोलिए, और जो नाम देना दीजिए, बट दिस इज द अल्टीमेट फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और इसके साथ साथ कई चीज़ें हैं जो शवासन में भी फ़ायदा करती हैं, भ्रामरी में भी, ये मैं डिटेल में भी नेक्स्ट पढ़ता हूँ। और इसके अलावा आसन का भी ऑल नो, साइंटिफिक अभी तो प्रूव हो चुका है हर जगह। इट रिड्यूसेस योर ब्लड प्रेशर, शुगर, रिड्यूसेस योर कॉर्टिजोल, इम्प्रूव्स योर ऑटो नर्व सिस्टम, बहुत सी चीज़ें हील करता है, कंट्रोल करता है और काफ़ी फायदे करता है। ये आपको पता ही है, इसलिए मैं डिटेल में और नहीं जाता हूँ। प्राणायाम से भी पता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही साबित किया था। इट हेल्प्स टू लोअर योर वेरी मेनी पैरामीटर्स जो बढ़ जाते हैं, स्पेशली इसका फायदा होता है वेगस नर्व जो मैंने बताया। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट का जो सिस्टम है हमारा, उसमें फायदा करता है, हार्ट में फायदा करता है। और स्लो ब्रीदिंग से जो पैरा सिस्टम हमारा बॉडी में वो एक्टिव हो जाता है। एंड देर आर मेनी मोर बेनिफिट्स विच ऑल हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, these are wonderful. You can go through the AIMS research and DRDO and DIP and so many. Now जी, मेन चीज़ हमारी जो हम मिस्टेक करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। ये डायनामिक तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप योग की बात करें तो जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, स्थिर सुखम आसना, जब भी आप योग करते हैं प्लीज फॉलो दिस प्रिंसिपल। एंड एफर्टलेस करना है, सो इसमें लिखा है प्रयत्न शिथिल अनंत व्यायाम, वैसे करना है। प्राणायाम के लिए भी दी हुई है डेफिनेशन, आप उसको फॉलो करिए। सो योग को करिए स्टैटिक वे में, डायनामिक वे में नहीं करिए। और मेन चीज जो है ओम चेंटिंग इन भ्रामरी, दैट हेल्प्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर नाइट्रिक ऑक्साइड which is good for your dilating your arteries, veins and so on, helping your lungs, heart and eyes. So ये आप जरूर याद रखिए और ओम भ्रामरी जरूर करना है। मेडिटेशन का भी बेनिफिट हमको पता ही है। 10 मिनट का शवासन या ध्यान आपके 2 घंटे की नींद के बराबर होता है, और इसको पूरा हीलिंग, रिपेयर, रेजुविनेशन कर देता है। सो मेडिटेशन बेसिकली रिड्यूसेस कॉर्टिजोल, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड सो ऑन। We know this, so I'll move on to the next one. जो भी हमारे पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं उन्हें ये सही करने में बहुत अच्छा है, तो आप जरूर करिए शवासन या ध्यान। मैं अभी पढ़ लेता हूँ थोड़े से पॉइंट्स, अदरवाइज लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। ये जो मैंने एक स्लाइड दिखाई आपको, बेसिकली वी हैव अ 3 ब्रेन। 3 ब्रेन मतलब आपका ये जो ब्रेन तो है ही, हार्ट एंड योर स्टमक, ये तीनों में हमारी जो नर्व है वेगस नर्व, दैट पासेस थ्रू, एंड अगर वो स्टिमुलेट होती है तो आपको हीलिंग हो जाती है ना। जैसे अभी याद होगा कि कई बार कहा जाता है दिल से करिए, दिमाग से करिए, दुआ से करिए। सो अगर आप पेम्पर करते हैं, आपको मेंटल पेम्परिंग, हार्ट का पेम्परिंग, पेट का पेम्परिंग, पेट का तो पता ही है, अच्छा खाना खाइए, पेट और वहाँ की जो healthy neurons हैं, pathways हैं, they get activated. Same way with your gut and your heart and your brain. So remember to pamper yourself. One simple key is pamper yourself through your mind, your heart, through your stomach. चीजें हैं जो आप बताइए कि what we eat we are. जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत है हमारे संस्कार में भी और साइंस में अब कहा गया सिंपल कि आप जो खाते हो वैसे बन जाते हो। और ये why we have constipation because of junk food and no yoga. What food we should eat, that is also clearly mentioned and given here. 50% or so
should be simple veg diet, which should include sprouts and salads. Rest all can be the other balanced thing, your rice and dal and roti and all that. But now we all know, earlier हमारे संस्कार थे, मुझे याद है हमारी दादी दादा और सब बोलते थे कि मिस्सी रोटी खाओ। तब मिस्सी रोटी का मतलब था कि बेसन डाल लो या ज्वार डालो गेहूं में, वो मिक्स करिए। और उन दिनों में हम लोग भूसी निकालते नहीं थे, जो फाइबर होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे रिसर्च आई अमेरिका में, यहाँ वहाँ, कि फाइन फ्लोर इज बेटर, मैदा खाइए। मैदा खाया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब रिसर्च वापस आई है कि आप फाइबर खाइए। सो हमारे जो संस्कार थे, हमारे जो दादा दादी ने बोला था मिस्सी रोटी खाओ, भूसी भी खाओ, फाइबर भी खाओ, ज्वार चना बाजरा मक्का, गेहूं हम लोग को रिसेंटली मिला है कई सालों पहले से। बहुत 50-100 साल पहले, 100 साल पहले गेहूं का इतना यूज नहीं था। सो आप गेहूं खाइए, लेकिन उसमें कुछ मिला लीजिए, चाहे वो चना हो, ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा, जो आपको सूट करता है बॉडी को। अगर डायबिटीज है तो वो चीज़ें कुछ कम मिलाना, बेसन चलेगा लेकिन बाकी नहीं। मिलेट्स आजकल हमारी सरकार ने बहुत प्रमोट किए हैं। मिलेट्स आर द सेफेस्ट, चीपेस्ट, बेस्ट फॉर योर हेल्थ। सो गेहूं कम खाइए, वाइट राइस कम खाइए, एंड ज़्यादातर ये मिस्सी रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी खाइए, एंड हैव अ सैलड एंड कर्ड एवरी डे इज बेटर फॉर यू। सो हैव अ बैलेंस डाइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट आपको सूट होती है वो खाइए। जैसे मैंने कहा, पैम्परिंग इज इम्पॉर्टेंट। नाउ ये सब चीज़ें हैं जो मैं सिंपल सी, वी ऑल नो, घर का जो नाश्ता हमारा कई सालों से मिला है, बना है, वही खाइए। एंड दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाकरी है, नाचनी का, इसका आई हैव जस्ट मेंशन दैट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन ना, ये चीज़ें जो दिखाई हैं मैंने, ये देख के शायद कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आती होगी। ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है आप लोग को? ये चैट में आप डाल सकते हो। ये है पिज्ज़ा है, बर्गर है, मुंबई की भज्जी, वड़ा पाव, पकौड़ी, भेल, ये सब चीज़ें हैं ना। दीज आर मोस्टली स्टिमुलेंट्स, दीज आर मोस्टली राजसिक फूड। ये हमको नहीं खाना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन कभी कभी टेम्पर करना हो, अपने आप को ऐसे ही कुछ खुश करने की इच्छा हो, तो आप ये टेस्ट कर सकते हो, बट वंस इन अ वाइल, नॉट रेगुलरली। तो दिस इज द बैलेंस प्लेट विच इज व्हाट आई ईट एवरी डे। ये मैंने क्यों फोटो डाला है कि मेरा खुद का खाना है, मेरा रोज का खाना है। स्प्राउट्स होता है, कर्ड होता है, दाल होती है, और रोटी में आई चेंज मल्टीग्रेन या नाचनी या मिस्री या फिर ज्वार की वेजिटेबल होता है, एंड मोर ग्रीन वेजिटेबल्स रहता है, लीफी वेजिटेबल्स रहता है, एंड नींबू जरूर लेता हूँ, आप भी लीजिए नींबू। एंड नाश्ते में जो दिख रहा है आपको पिक्चर साइड में, वो बी स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, एंड पफ्ड इधर मिलेट्स हैं, या फिर कुछ भी जो पफ्ड या रोस्टेड होते हैं वो। ये सिंपल सा डाइट है जो आप लीजिए, विच आई ऑलवेज एंजॉय। और जहाँ तक पीने का सवाल है कि नींबू पानी है, ऐसे कुछ जूसेस हैं जो आपको सेफ लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, वो पीजिए। सिंपल सा घर में सैलड हम लोग काटते हैं, लेकिन कई बार आलस में नहीं खाते हैं, नहीं काटते हैं, तो ये हर घर में अवेलेबल होता है। कांदा, प्याज, टमाटर, काकड़ी, मूली, गाजर, ये 4-5 चीज़ें आपको सिंपली काटनी है और खानी है। बट अगर बीमारी कम करनी है तो खाने के पहले खाइए। अगर आपका खाना 50% और सो रॉ है, फ्रेश है, स्टीम्ड है, बॉइल्ड है, लाइक दिस स्प्राउट्स एंड सैलेड्स, तो आपकी शुगर भी कम हो जाती है। बिसाइड योर वेट, योर डाइजेशन, योर मेनी मोर हेल्दी इश्यूज कैन बी कंट्रोल। आपको बहुत फायदा होगा, आप करके देखिए, मेरी गारंटी है। आप अगर ये खाते हैं डेली, तो आपके बॉडी में कई बीमारियां निकल जाएंगी। आप मेरा नंबर ले सकते हो, या कभी कहीं टच में आप आइए, आप ट्राई करिए 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए योग करिए रोज, अपने संस्कार फॉलो करिए, साइंस को फॉलो करिए। हमारा शरीर या हम लोग बने ही इसीलिए कि जो प्रकृति ने दिया है वो खाएं। हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति ने जो दिया है उसको लाते हैं, उसको काटते हैं, धोते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। मुंबई की भाषा में उसे बोलते हैं वाट लगा देते हैं। वो खाने को हम एक्चुअली फ्रेश खा ही नहीं पाते हैं। और हर चीज़ का आप जब फ्रूट को या भाजी काटते हो, कुछ घंटों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कुछ घंटे बाद और कम हो जाती है।
और एक बार दिन पूरा निकल गया, फ्रिज में रख दिया, तो वो इट्स नॉट मच यूजफुल। सो जितना वो फ्रेश खाइए, और ये गारंटी है मेरी, मेरा खुद का अनुभव है, मेरे कई स्टूडेंट्स का अनुभव है, अगर 50% अगर आपने ये खा लिया सैलड एंड स्प्राउट्स, आपकी मोस्ट ऑफ द डिजीज विल गो अवे। तो प्लीज फॉलो दिस। और क्या करना चाहिए खाने के बाद? आयुर्वेद में कहा है, हमारे संस्कारों में या शास्त्रों में कहा है, शतपावली, आपको 100 कदम या उसके आसपास चलना चाहिए खाने के बाद। दूसरा, योग में कहा गया है वज्रासन करिए। खाना खाने के बाद आपको डाइजेशन में बहुत फायदा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? जब आप चलते हो तो ऑलरेडी खाना हमारा बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है और खाना नीचे की तरफ हजम होने के लिए जाता है। वज्रासन में क्या होता है कि जब आप बैठते हो इस पोजीशन में, तो आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा है वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होता है। सारा ब्लड फ्लो मोस्टली हमारी कमर में और पेट में ही ऊपर होता है। सो जहाँ हमारा खाना है वहीं पे ज़्यादा ब्लड फ्लो रहता है, और हजम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पेट में ज़्यादा हो, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो वज्रासन करिए। और तीसरा है, अगर आपको संभव है, पॉसिबल है, अगर आप लेटते हो तो करिए वाम कुक्षी। वाम कुक्षी मतलब लेफ्ट साइड लेटिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट साइड लेटते हैं 5 मिनट, तो फिर राइट साइड लेटिए 3 मिनट, और फिर वापस लेफ्ट लेटिए 2 मिनट। दूसरा, अगर आप काउंट कर सकते हैं आपकी ब्रेथ, तो आयुर्वेद में कहा गया है, हमारे संस्कारों में ये बताया गया है, 32 सांस गिनिए, धीरे लंबा गहरा, लेफ्ट साइड लेटने के बाद। लेफ्ट साइड लेटे रहिए और 32 सांस गिनिए। फिर आप आ जाइए राइट साइड लेटिए, उसका आधा 16 सांस गिनिए, धीरे धीरे प्यार से आंखें बंद करके। फिर वो 16 होने के बाद वापस लेफ्ट साइड आइए और वहां गिनिए 8 सांसें। सो लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं वाम कुक्षी। खाना हजम होता है, गैस वैस निकल जाती है, एसिडिटी कम होती है, और आपको बहुत फायदा होता है। अगेन, इफ यू फॉलो दिस, शतपावली, वज्रासन एंड वाम कुक्षी, आपका हेल्थ इश्यूज कंप्लीटली कंट्रोल हो जाते हैं या निकल जाते हैं। ये डाइट तो ऑलरेडी बताई हुई है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। वित्ताहार बेसिकली योगिक डाइट है। जब भी आप खाना खाते हो, कोशिश करके 20-25% पेट खाली रखिए। पेट पूरा भरना नहीं है, चाहे वो सैलड ही हो, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना हो। सो 50% आपको लेना है सिंपल वेजिटेरियन डाइट, 25% और सो लेना है पानी, जूसेज एंड ऑल दैट, लिक्विड के लिए, और 25% लगभग होना चाहिए पेट खाली। क्यों होना चाहिए खाली? पता है हमको, जब हम चटनी बनाते हैं घर में या मसाला बनाते हैं, मिक्सर चलाते हैं, तो पूरा भरते नहीं है, थोड़ा खाली रखते हैं, जिससे वो आराम से मिक्स हो सके। यही लॉजिक यहाँ भी है कि आप पूरा भरिए मत, जिससे आपके एसिड्स हैं, गैसेज हैं, जो हजम करते हैं, एंजाइम्स हैं, वो बराबर खाने में मिक्स हो सके। तो आप ध्यान रखिए, मितार फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि आपका खाना ज़्यादातर अल्कलिक हो, लेस एसिडिक हो। मतलब प्रकृति ने जो दिया है वो खाओ, लेस प्रोसेस्ड, लेस प्रिजर्व्ड, लेस फ्रॉम द फ्रिज। और खाने के 3 कैटेगरी बनाए हुए हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। सात्विक खाना हम लोग को हमारे संस्कारों ने बताया हुआ था, जो सिंपल है, घर में बना हुआ हो, शाकाहारी हो, ज़्यादा मसाले तीखा वीखा और सब नहीं हो। वो खाने से आपका मन शांत रहता है, एनर्जी बैलेंस रहती है, बीमारियां कम आती हैं। रात से खाना जो है, रेगुलर जो आजकल हम खाते हैं, कॉफ़ी, टी, मसाले, ये सब जो स्पाइसेस हैं, स्टिमुलेंट हैं, ये खाने से थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाइपर हो जाता है। तो ये कभी कभी ठीक है, बट अदरवाइज कम खाइए। तामसिक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो फ्रिज में रखा हुआ हो, खराब मतलब पुराना है, जंक है, स्टेल है, पुट्रिड है, फर्मेंटेड है, फ्रोजन है, प्रिजर्व्ड है, कैप्ड है, नॉनवेज है, अल्कोहल है, टोबैको, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे एनर्जी हमारी डल होती है, नेगेटिव होती है, और हम आशावादी ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव नहीं रह पाते। ये मैं एक टिप आप लोग को देना चाहता हूँ बिफोर आई एंड माई सेशन। ये हमारे संस्कारों का और साइंस का मिक्सचर है, जो मेरा फेवरेट है, मैं सबको सिखाता हूँ। आप कोशिश करके दिन में सुबह शाम 2 बार कम से कम सेम मुद्रा, जिह्वा बंद, ब्रह्म मुद्रा करिए। ये आपके चेहरे को, आपके थायराइड को, आपके आर्टरीज को, वेन्स को, सबको फायदा करता है। एंड इट इज़ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रैक्टिसेस एज ए पैकेज। मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा हमारे टीम को, वो आप तक पहुंचा देंगे। अभी शायद करने के लिए समय नहीं है, बट आई थॉट आई जस्ट इन्फॉर्म यू। और ये करने से आपके जो
वेगस नर्व अगेन स्टिमुलेट होती है, आपकी ग्लैंड्स हेल्दी रहते हैं और चेहरे पे ग्लो रहता है. आई कॉल बेसिकली दीज 3 प्रैक्टिसेस एज ए पैकेज फॉर बॉडी, ब्रेन एंड ब्यूटी. तो भूलिए मत, ये करिए, सीख लीजिए. आज समय नहीं है, हम सिखा नहीं पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू टीच यू, और आई विल शेयर द वीडियो विच यू कैन लर्न फ्रॉम. कुछ डेली टिप्स हैं, डेली संकल्प हैं जो हमें करना चाहिए. हमारे संस्कारों में भी थे, साइंस में भी हैं. जैसे हमारे हमको बोला जाता था पहले कि आप पेंसिल से डायरी लिखिए. ये बहुत अच्छी बात है, आप अगर कर सकते हो तो करिए. पेंसिल से ही क्यों लिखना, पेन से क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लिखते हैं, उसे भूलना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं, वो हमें याद नहीं रखना चाहते हैं. इसके लिए आप पेंसिल से लिखिए. और बैलेंस डाइट लीजिए. सबको पता है हमारे शरीर को बैलेंस चाहिए. और जैसे मैंने कहा, स्माइली फेस रखिए. तो आजकल का ज़माना है, कीप योर फेस सेल्फी रेडी. मैं भी हमेशा दिन में कई बार सेल्फी लेते रहता हूँ. तो ये सेल्फी लेते रहिए. इट हेल्प्स यू टू स्माइल एंड शेयर द सेल्फी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. और परिवार ही आपका बेस्ट डॉक्टर है. परिवार और कुछ दोस्त भी होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स. अच्छा डॉक्टर अगर है तो कोई नंबर 1 डॉक्टर अगर कोई है तो फैमिली फर्स्ट. बात करिए, मिल नहीं पाते हो तो फ़ोन करिए, वीडियो कॉल करिए, अंडरस्टैंड करिए, उनको समझिए, और फैमिली फर्स्ट का प्रिंसिपल अपनाइए. आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. और दोस्तों को भी रखिए, थोड़ा मज़ा मस्ती भी करिए, मौज में रहिए. एंड उसके बाद ये मैं चाहता हूँ आपको बताना कि आप, जैसे हम लोग बैठे थे अभी, लगभग बैठे 1 घंटा होने को आया, तो मुझे जो कुर्सी में बैठा हूँ इसका यूज़ करना आना चाहिए. कैसे यूज़ करना आना चाहिए? पैरों के पंजों को, तलवों को अगर मैं हिलाता रहूँ टेलर की तरह, पुराने ज़माने के टेलर की तरह, तो मेरे काफ मसल्स और लेग मसल्स विल गेट एक्टिवेटेड. तो जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं, पेन प्रॉब्लम होती है, वो कम हो जाती है. सो बैठे बैठे आप जब भी कुर्सी में बैठते हो, अपने पंजों को चलाइए. बी ऑन टोज, बी ऑन हील्स. ओके. अब आया दूसरा, आया बेड, बिस्तर. हम लोग सोते हैं बिस्तर पे. ये आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली हम सबका सोने का तरीका एक ही होता है. वही साइड से हम बेड में जाते हैं, वही साइड सोते हैं, वही साइड से उठ जाते हैं. वही तरीके से एक ही सेम पैटर्न में हम सोते हैं. आपका बेड, जब आप बचपन में छोटे थे, आपने कैसे मस्ती में यूज़ किया? कभी सर यहाँ है, कभी सर वहाँ है, कभी आप यहाँ से घुस रहे हो, कभी वहाँ से घुस रहे हो. तो बेड को भी आप ऐसे यूज़ करिए, सेम पोजीशन में, सेम एंगल में, सेम टाइप में. रोज़ नहीं सोना. कभी कभी अगर आप पति पत्नी हैं तो पत्नी की जगह सो जाइए, पत्नी आपकी जगह सो जाइए. शिफ्ट द पोजीशन, चेंज द पोजीशन. अगर आप अकेले हो तो उसको आगे पीछे कर लो, कभी लेफ्ट कर लो, कभी राइट कर लो. सो यूज योर बेड एंड द चेयर फॉर हेल्थ पर्पस. उसे ऐसा मत करिए कि वो आपकी बीमारी बन जाए, बीमारी के लिए एक बहाना बन जाए. सो यू कैन डू अ लॉट. योग डजंट मीन 1 hour of practice. Yoga means whether it's a chair or your bed or any activity you do, keep yourself moving or in the way of active in a relaxed manner. So use your chair correctly and the bed as well. And finally use your body in a balanced manner. अगर आप लेफ्ट हाथ से कुछ काम करते हो तो राइट से भी करिए. अगर आप ट्विस्ट करते हो लेफ्ट तो राइट भी करिए. ट्राई टू यूज बॉडी ना. लाइक हम लोग फोन मोस्टली एक ही हाथ में पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं मेरा कंधा दुख रहा है, गर्दन दुख रही है. लेडीज लोग पर्स एक ही तरफ पकड़ती हैं, फिर बोलते हैं नेक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया. सो यूज योर बॉडी एंड एवरीथिंग इन ए बैलेंस मैनर. और एक आजकल हमारे जो खाने में और पोल्यूशन जो भी है, बैलेंस खाना या वो सब नहीं हो पाता है. तो कभी कभी बॉडी में विटामिन की कमी से भी बीमारियां आती हैं. ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप डॉक्टर की सलाह से या जो भी जानकार लोग हैं उनकी गाइड से ये अगर आप ले सकते हो. मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, विटामिन सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल दैट. आपकी कई बीमारियां सिर्फ विटामिन लेवल बराबर करने से भी कम हो जाती हैं या कंट्रोल में आती हैं या क्योर हो जाती हैं. तो सिंपल टिप है कि विटामिन लेवल चेक करिए अपने. जगह आप 30 साल के ऊपर है तो या एनी एज में कर सकते हो, और वो लेवल आप मेंटेन करिए. एंड वन मोर माय फेवरेट प्रैक्टिस इज व्हेनेवर यू हैव टाइम, वी कैन डू दिस फॉर नाउ फॉर 1 minute. वी हैव टाइम है हमारे पास 5 मिनट का. और मैडम I'll just take I think 5 minutes more. Yes, sir. Okay. Yeah, okay. So आप लोग 2 मिनट मेरे साथ और रहिए. और ये मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या मैजिक हमारे अंदर है और हमारे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होती है.
बॉडी ही हमारा सब हील कर देती है। ओके, आंखें बंद करिए, फिर से चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। मैं क्यों कराता हूँ, जिससे याद रहे, अभ्यास एंड वैराग्य दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अभ्यास करते रहिए और डिटैच भी रहिए। तो आंखें बंद करिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और सांस को बड़े शांति से धीरे धीरे प्यार से लीजिए। और सांस को लेने और छोड़ने में हमें एक चीज और करनी है। ठंडी सांस नाक में गई, वो अनुभव करिए, फिर अपने आप कुछ पलों के लिए बीच में रुक जाती है और गर्म सांस धीरे से बाहर आती है। तो ये जब सांस ठंडी नाक में गई, अपने आप रुकी, फिर गर्म सांस नाक से बाहर आई, इसे करना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। लेकिन इसमें एक और चीज आपको ऐड करनी है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मेरा फेवरेट है, मैं करता हूं दिन भर जब भी मौका मिलता है, मैं करता हूं ये 2 शब्दों का नाम जप करता हूं। आपको मैं चॉइस दे रहा हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे भक्ति भाव है, भाव शुद्धि है, समर्पण है, डिवोशन है। एंड विद दिस एक्सपीरियंस एंड फीलिंग आपको लेना है, नाम जप करना है। मन में बोलिए, अपने आप बोलिए। ठंडी सांस नाक में गई, उस समय आप बोलिए सीताराम। गर्म सांस जब बाहर आई थी, बोलिए राधे श्याम। दूसरा ऑप्शन है, सांस लेने के समय आप बोलिए मन में सो, एंड छोड़ने के टाइम बोलिए हम। तीसरा ऑप्शन है, सांस लेने के टाइम बोलिए हरि, छोड़ने के टाइम बोलिए ओम। तो यू कैन चूज योर ओन ऑप्शंस। आप अपने आप कोई नाम जप ले सकते हैं। मैंने जो फेवरेट हैं, पसंद है, मैंने बताए हैं। आंखें बंद रखिए, 1-2 मिनट के लिए और ये नाम जप करिए, लेकिन सांस के साथ करना है। द प्रिंसिपल इज, ठंडी सांस नाक में गई तो आपने बोला सीताराम, गर्म सांस बाहर आई, बोला राधे श्याम। फिर ठंडी सांस नाक में गई तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, मन में बोलिए सो, फिर हम। तीसरा ऑप्शन है हरि ओ। और फाइनली आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसे करिए, 1-2 मिनट और करिए। आंखें बंद हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, भक्ति भाव है, भाव शुद्धि कर लीजिए। समर्पण से, श्रद्धा से, दिल से, मन से करिए। 1-2 मिनट और कर लीजिए। ये जादू होता है। ये जादू मतलब आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगल टोन, पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम गेट्स मोर एक्टिव। ये सब जादू कर देता है पूरा। तो आप करते रहिए 1 मिनट के लिए और अब आपको समय कम है तो ये आप, जब मैं लेक्चर खत्म होगा तो आप दोबारा अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आंखें बंद रखिए, सुनिए तो भी चलेगा, आँख खोलना चाहे आँख खोल सकते हो। और कुछ और पॉइंट्स जो बताना चाहता हूँ कि हम 80% ऑफ द टाइम हम लोग ब्लेमिंग, ब्रूडिंग, कंप्लेनिंग करते हैं। तो विचारों का विचार करिए, हमारे विचार कैसे हैं। जो संस्कार हमको मिले हैं बचपन में, हमारे गुरुओं ने, माता पिता ने, या स्कूल में जो मिले हैं, उन्हें भूलिए मत। और संस्कार ऐसे ही थे, ऑल इज वेल, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। तो आशावादी विचार करना है। सेल्फ नेगेटिव टॉक, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, ब्रूडिंग, डाउटिंग, वो सब कोई फायदा नहीं है। कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत से पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूँ, बट ये आज इतने ही खाली बोलूंगा। मेन मेरा जो हाईलाइट आपको कहना यही है, हम खाली समय में अकेले बैठे होते हैं, तब हम क्या विचार करते हैं उनका विचार करिए। मेरे विचार कैसे हैं, हमारे संस्कार में ही कहा गया है, जो विचार करोगे वैसे बन जाओगे। सो ensure your thoughts, your thinking is right, happy and positive. Okay, and then there are all these scientifically अगर देखा जाए, टाइम मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, सोशल लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट। तो ये सब मैनेजमेंट की चीज़ें भी हैं जो हमें करना चाहिए। और ये और समय नहीं है, ये रिसर्च की कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताता हूँ। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है, जो हमारे योगियों ने कई हजारों साल पहले साबित किया या निकाला या कहा करा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सांस क्यों ज़्यादा लें, क्यों प्राणायाम करें, क्यों ध्यान करें, क्यों योग करें, वो सब का बड़ा आज साइंटिफिक सबूत है। तो आप ये संस्कारों को, साइंस को मिलाइए और साइंटिफिक योग करिए, जो एक
हेल्दी है। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को पता होगा चूहा कितने बार सांस लेता है 1 मिनट में? अगर पता हो तो वो चैट में आप डाल सकते हो, मैं नहीं बता देता हूँ। चूहा सांस लेता है लगभग 1 मिनट में 100 बार और 100। कछुआ सांस लेता है 1 मिनट में 2-3 बार और 100। हम लोग सांस लेते हैं 15 या 16 बार 1 मिनट में। तो क्या हुआ लॉजिक, और ये एग्जाम्पल क्या कहते हैं? चूहा सांस बहुत ज्यादा लेता है और जीता है खाली 2-3 साल। कछुआ सांस बहुत कम लेता है, धीरे लेता है और जीता है 200-300 साल। हम लोग सांस लेते हैं 15-16 बार और जीते हैं 65-70 ईयर्स ऑफ एज। सो लॉजिक ये है कि जितना आपका सांस शांत है, शरीर, मन, भावना और आयु आपकी अच्छी हो सकती है। तो आज का कंक्लूडिंग मेरा पॉइंट यही है कि डिटॉक्स करिए, वेगस नर्व को ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेल्फी रेडी रहिए, कीप योर सेल्फ हैप्पी, स्माइलिंग, पिक्चर लेते रहिए, पिक्चर शेयर करते रहिए। जब भी आपको बोलते ना स्माइल प्लीज पिक्चर के टाइम, बोलते कि नहीं? तो आप खुद खुश हो जाते हो जब भी आप मिरर में देखते हो या पिक्चर लेते हो, तो वो ध्यान रखिए। एंड सांस पे ध्यान दो, सांस पूरी लो, पूरी छोड़ो, बकेट्स है हमारे अंदर, उसे भरिए और खुश रहिए। खाना पीना समय पे खाइए, अपने जो दिनचर्या लिखी है आयुर्वेद में, हर जगह लिखी है, उसे पालन करिए, प्रकृति के साथ रहिए। और लाइफ में इतना कुछ हमारे पास है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, जो है उसे एंजॉय करिए, जो नहीं है उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना है। वी हैव प्लेंटी, इतना है हमारे पास जो हम एंजॉय नहीं करते हैं, जो नहीं है हम वो सोचते रहते हैं, राइट? सो आई वोंट टेक मच टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, द टीम ऑफ CCRYN। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कीप इन टच। बस नमस्कार जरूर करते रहिए हाथ जोड़ के, ये एक संस्कार है और एक हमारा साइंस भी कहता है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर, आपके ये स्वर्णिम शब्द हमारे लिए निश्चय ही प्रेरणादायक रहेंगे। आपने बहुत ही अच्छे विषय को आज लिया और ये सही है कि हमारे संस्कार परंपराएं नहीं है, बल्कि हमें संतुलित जीवन जीना सिखाते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ इनका पालन भी करना सीख जाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर ऑडियंस में से किसी की कोई भी क्वेश्चन पूछना है सर से, आप कोई भी बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप अनम्यूट करें और पूछिए। आप बुक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सुरवीर साहेब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. बरं वाटलं आपल्याला बघून, बरं वाटलं. नाही नाही ना काय, आपण एवढं छान सांगितलं, म्हणजे औषध घेण्याची जरूरत नाही, अजिबात एवढंच जरी पालन केलं तरी. बरोबर. खरं आहे. छान. Thank you, Raviji. थँक यू व्हेरी मच. Prabha. Yeah, I'm here. Prabha. Thank you so much. Yeah. सर नमस्ते, Yes. मैं अहमदाबाद से डॉक्टर अरविंद। और आपने जो संस्कारों को जो इंटीग्रेटेड किया है आधुनिक रूप में, हमें जो भरोसा है वो बहुत हमें काम लगेगा हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रिसर्च का सपोर्ट देंगे तो लोगों को अच्छा लगता है, वैज्ञानिक दृष्टि से है तो बोलो। Yes. या ना, अभी साइंस ने सर, सुरवीर जी, साइंस ने जो अपने संस्कार थे सब साबित हो गए, अभी कुछ बचा नहीं है। अभी आप देखिए विदेशी लोग हमारे संस्कृति को ही फॉलो कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ याद रखना है कि ये यही हमारा, आप सोचिए उन योगियों का क्या दिमाग रहा होगा, क्या नॉलेज रही होगी, क्या फोरसाइट और क्या ज्ञान रहा होगा। यही धरोहर है, यही है। यस सर, बेसिक है, और बाद में भाग कर दूसरे उसमें ढूंढते हैं दूसरी चीजों को, किसमें Yes. क्या है। yes, yes. नहीं, वेरी वेल सेड, थैंक यू। बहुत मिलेंगे फिर अच्छे कभी। अच्छे सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज अंदर से संतुष्ट हैं आपकी बातों से, और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मिशन है ये कामयाबी की ओर जा रहा है।
So finally, on behalf of CCRN and the entire organizing team, I express my deepest gratitude to our esteemed guest, Shri Ravi Dikshit ji sir. Thank you, sir, for taking out your valuable time and sharing your 44 years of experience with us today. We are deeply enriched by your presence. I would also like to thank all the participants who joined us today. Thank you, everyone. Stay healthy, stay blessed, and keep smiling. That's what Thank sir you. ने कहा. मैडम ये CCR1 की पेज फेसबुक पे वो रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे आप? जी हाँ सर, बिल्कुल. ओके, थैंक यू. फेसबुक क्योंकि लोगों को थोड़ा देरी से हो गया, इसीलिए जरा दिक्कत थी कनेक्ट होने में. ठीक है, थैंक यू. सर, तो उसकी वजह से हम माफी चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई- फेसबुक पर भी होगा और यूट्यूब चैनल पर भी होगा. हाँ, धन्यवाद. थैंक थैंक यू. यू.